Okay, our today's topic is composition and functions of blood. Okay, first I'm going to write some components of the blood, and then I'm going to write the function of each component of the blood. That's how you will memorize the functions of the whole blood. I know you already know few of the things about blood. These are the contents of the blood. Now, but we want some more details now. We want to dig in some more details, some more specific points about the composition and functions of blood. As we all know, blood is composed of two major parts. One is 55%, that is plasma, and remaining is 45%, that is blood cells. Let us talk about blood cells first, because it is easier and you already know that. There are three types of blood cells: red blood cells, white blood cells, and platelets. Why I have written RBC first, then WBC, and then platelets? It is actually, yes, the number is one thing, and also the importance of their function is another thing. Importance of their functions. All have important functions. RBC, very important function. They carry oxygen and CO2. They carry the gases. Yes, major function is to carry O2, oxygen. CO2, they are not very good percentage they are carrying of CO2, but still they are carrying it. So that's why we will include it. So what can we say RBC? What's the alternative name we can give them? They are the transport vehicles. They are the transport vehicles. They take the oxygen from the lungs, give it to the tissues. They take carbon dioxide from the tissues and give back to the lungs so that they can exhale out. Okay. WBCs, they are basically our defense system. WBCs, white blood cells, is our defense system. So, protect against different diseases. ये मैंने ना बहुत ज्यादा एक वाइड यूज की है बात कि प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिफरेंट डिजीजेस. थैंक यू. जनरली एमबीबीएस में जब याद रखना है ना आपने इसको, डिजीजेस आर जनरली ऑफ टू टाइप्स. जनरली infectious and non-infectious. Infectious diseases are those which are caused by microorganisms, and non-infectious diseases are those which are caused by any other reason than the microorganism. Any infectious disease comes to your mind caused by microorganism? You have already read it. Sorry, sinusitis. Okay, right. Next, infectious disease बताओ बेटा कोई. Black coat. No. Next, tetanus. Good. Next. No, nothing comes to mind. Next, cholera. Yes. Next, TB, tuberculosis. Very famous in Pakistan. Hepatitis, caused by viruses. Non-viral भी होते हैं, but the hepatitis caused by viruses are infectious. Yes, there are many very long list of mostly gut related problems, gut related diarrhea, constipations. They are mostly because of microorganism. Their microbiota पे बहुत काम हो रहा है आजकल. रिसर्च का बड़ा हॉट टॉपिक है ये. बल्कि अब मैं तो कहूँगा कि 2 साल पहले शायद ज्यादा हॉट टॉपिक था, अब कम हो गया है, कि गट की माइक्रोबायोटा पे बहुत काम हुआ है कि ये हेल्दी माइक्रोबायोटा होता है, ये अनहेल्दी माइक्रोबायोटा होता है. जब आप फाइबर डाइट खाते हैं तो आप अपनी हेल्दी माइक्रोबायोटा को सपोर्ट कर रहे हैं. जब आप अनहेल्दी डाइट खाते हैं तो आप अपने जो आपका अनहेल्दी माइक्रोबायोटा है आप उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं. दैट्स वाई जो अनहेल्दी डाइट्स होती हैं वो जीआईटी प्रॉब्लम ज्यादा कॉज करती हैं. So it is lesser of a diet and more of related to the microbiota of the gut, and the diseases of this gut, of course, these are infectious diseases. TB is very common in Pakistan. अच्छा, एक और मैं आपको बताऊं, जब भी आपने डिजीजेस को याद रखना है ना, प्रेवलेंस बड़ी इंपॉर्टेंट. एक वर्ड आपने याद रखना है, प्रेवलेंस ऑफ डिजीजेस. आपके जहन में आ जाए यार, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया
the disease is caused by gram negative bacteria. इनको अलाइन करना है. I think there will be 20, 30 you will be going to memorize in third year MBBS. But what will be the order? What will be the order? Every disease is very dangerous. Every disease can kill a human being if not treated. Prevalence. In your area, which one is more? Prevalence का मतलब होता है कौन सी ज्यादा है, रेट किसका ज्यादा है, किसकी परसेंट, कौन ज्यादा लोगों को इफेक्ट कर रही. You know, hepatitis and tuberculosis is not a more prevalent diseases in Europe and those countries. Western countries में कोई इतनी prevalent नहीं है, वहां पे और डिजीज ज्यादा prevalent, लेकिन हमारे एरिया में every 4th or 5th person is having hepatitis. It is such a dangerous disease. Now, can I give you 10 seconds again? Think about a non-infectious disease. Diabetes, yes, very common in Pakistan, Shabash, and non-infectious. Diabetes is not caused by any bacteria or virus. It has very different pathological basis. Hypertension, increased blood pressure, again very common in Pakistan. Again, it is a non-infectious. Cancer can be infectious and non-infectious. ये दोनों कैटेगरी में आता है. Even a microorganism can cause cancer. There are some parasites, Schistosoma hematobium, a parasite of urinary bladder, causes the cancer of urinary bladder. Yes, it can be non-infectious as well. It can be infectious. Rickets, yes. Again, vitamin D deficiency. Epilepsy can come there. Autoimmune disorder are, yes, non-infectious. Myocardial infarction is non-infectious. Sorry? Scurvy, vitamins deficiencies. Anemia, non-infectious, our topic. Osteoporosis, non-infectious. So we have a long list again. So मकसद ये एक्सरसाइज करवाने का आपको ये है कि आज के बाद आपको डिजीजेस की कैटेगरी सॉर्ट आउट हो जाए. जो WBC डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं, these are mostly infectious diseases. अब आपको इन्फेक्शियस का क्लियर होगी ना चीज. अब आपको इसका फंक्शन पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी कि योर व्हाइट ब्लड सेल, विच टॉपिक तो ये है ना तो वापस हमने इसी पे. तो योर व्हाइट ब्लड सेल प्रोटेक्ट अगेंस्ट मोस्टली इन्फेक्शियस डिजीजेस. They counter the microorganism in your blood. Of course, those microorganisms which are unhealthy. There are many which are healthy as well. Remember that. Okay. Platelets. Raise your hand who knows the function of platelet. Raise your hand. Shabash, mere science-daan bachcho. You know who is a scientist? Who talks something new? Be a scientist. Platelets never do clotting. ये याद रख लो आज के बाद. They help in clotting. मैं क्लियर करता हूं. इधर देखो मेरी तरफ. Clotting is a function of clotting factors formed by the liver. Platelet help those clotting factors in maintenance of the clotting. मैं आपको बताता हूं इसका प्रॉपर फंक्शन बताता हूं आपको. प्लेटलेट्स आज से पहले ना बच्चों को ये होता है कि क्लॉटिंग करवाते हैं. वो क्लॉटिंग करवाते नहीं है, क्लॉटिंग को इनिशिएट करते हैं. दे इनिशिएट द क्लॉटिंग प्रोसेस and then actual clotting is always done by the clotting factors. The clotting factors are 13 in number. There are 13 clotting factors in human blood. तो अगर इन्होंने क्लॉटिंग करनी है तो वो क्या कर रहे हैं फिर? तो एक्चुअली क्लॉटिंग करनी सब क्लॉटिंग फैक्टर्स ने है. प्लेटलेट हेल्प देम. तो whenever you write, you have to write the or tell the functions of platelet. They help the clotting factors in clotting process. ये सिमिलैरिटी है. एक फंक्शन आपको एक इसका मैं करवाता हूं, अभी आप करके हटे हो. व्हाट इज द फंक्शन, जस्ट वन मिनट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? इट्स नॉट प्रोटीन सिंथेसिस. दे हेल्प द राइबोसोम्स इन प्रोटीन सिंथेसिस. तो मैचिंग, इससे मिलती जुलती बात यहां पे हो रही. तो प्लेटलेट्स को आइंदा से ऐसे आपने याद रखना. इसकी डिटेल में जाएंगे हम. ये काम एक्चुअली क्या करते हैं, वो बात क्या होती है, अगर प्लेटलेट डेफिशिएंट हो जाए तो प्रॉब्लम क्या होती है, उस सारे को डिस्कस करेंगे सेपरेटली. लेकिन यहां पे अभी हमारा मेन फोकस ये टॉपिक है, द फंक्शंस ऑफ ब्लड. तो फंक्शंस ऑफ ब्लड में अगर आपने ब्लड सेल्स की तरफ जाना है तो दिस इज द वे यू विल राइट इट. अगर आपको ये 5 मार्क्स का SCQ आएगा, 5 मार्क्स का, राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ ब्लड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो what do you have to write? You have to just take
each component in your mind, take it out conceptually, and then write the function of each part individually. Ultimately, that is a function of blood because these are present in blood. Okay. Now, I'll taking my focus toward plasma, the major portion of blood. In plasma, 90% is water and 10% are dissolved substances. वाटर और वाटर में डिसॉल्व सब्सटेंसेस ये मिला के क्या बना रहे हैं? प्लाज्मा बना रहे हैं. What is the average amount of blood in an average human? It is 5 liter. It is 5 liter average. We're talking about average. A 70 kg man with average height, with average weight, we are taking the amount of blood nearly 5 liter or 5000 ml. Got it? So out of those 5000 ml, how much is water? So it will become around 3 liter, 3000 ml. That is water. 5000 ml is blood. 45 तो हमने निकाल दिए ब्लड सेल, तो रिमेनिंग में मेजॉरिटी जो है वो भी 55 पूरा नहीं, उसमें से भी जरा उसका भी 90% वाटर ले रहे हैं, 100% वाटर नहीं ले रहे हैं. So it comes around. It's not a proper figure, but around 3000 ml. रफ किसी को बताना होता है, याद रखना, क्योंकि आगे फ्लूइड डायनामिक्स में ये बात बहुत काम आएगी कि कितना ब्लड लॉस हो जाए तो कितना फ्लूइड लगाना होता है, ये बात इस पे बहुत डिपेंड करती है. ओके, let's talk about dissolved substances. The substance which is present in highest amount out of this 10%, 7 to 9% are the plasma proteins. I'll turn my and all of your attention towards the functions ultimately. Let's divide the plasma proteins. There are 4 types of it. प्रोटीन्स की बहुत टाइप्स हैं, लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन्स आर ऑफ 4 टाइप्स इन ह्यूमन ब्लड. अब मैं नंबर के अकॉर्डिंग कर रहा हूं, जो सबसे ज्यादा से सबसे कम है, हाईएस्ट टू लोएस्ट. एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन. In my lecture, whenever I am telling you some classification or some 1, 2, 3, 4 things, even if I forget to tell you about the order of that thing, always assume that that order is important in which the sir is telling us. Because I've always in my MBBS life and my postgraduate life, I've always tried to remember the things if these are more than one in an order. And that order can be any reason. Order can be of anything, most to least, least to most, important to least important, can be anything. But there is always an order. Albumin, globulin, fibrinogen, prothrombin. Fibrinogen and prothrombin both are clotting factors. अभी मैंने कितने बताए, कितने होते हैं? 13. Out of those 13, these are 1 and 2. Clotting factor number 1, clotting factor number 2. Fibrinogen and prothrombin. The most important clotting factor is fibrinogen. Always remember. Most important. Because ultimately every clotting factor is trying to convert this fibrinogen into fibrin. Ultimate, what's the line? सुनो मैं क्या बता रहा हूं. Ultimately every clotting factor, जितने भी 13 के 13, वो सब मिलके एक ही काम करना चाह रहे हैं, जो कि सबसे एंड पे होता है कि फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करवाना. अगर ये काम हो गया ना, तो clotting factor's job is done. Because fibrin is the thing. Why the name fibrin is given to it? It is made up of fibers. It will actually bridge that gap from where the bleeding is occurring. It will bridge that gap. It will actually heal that point of bleed, that fibrin. God forbid, if for any reason the fibrinogen is not converting into fibrin, then the clotting factors are not doing their job. Then they are failing. Then the bleeding may not stop, the clot may not form. Got it? So I'm telling you the importance of fibrinogen. Prothrombin is also important, but it is before the fibrinogen. First, prothrombin is converted into thrombin,
एंड देन थ्रोम्बिन कन्वर्ट्स फाइब्रिनोजेन इनटू फाइब्रिन। अभी मैं इतना ही बता रहा हूं, इसकी डिटेल जब प्लेटलेट्स का टॉपिक आएगा वहां पे डिटेल से क्लॉटिंग प्रोसेस में वहां पे करेंगे इंशाल्लाह। कमिंग टू दीज टू इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स, पहले मैंने माइनस के फंक्शन बताए जिनका नंबर ब्लड में कम है, अब मैं जरा मेजर की तरफ आ रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। There are two very important functions of albumin, two very important functions of albumin, and 1 and 2 is the order of importance. One is more important, second one is also important but lesser than the first one. Albumin maintains the colloid osmotic pressure in plasma. What is the number one and most important function of albumin? Maintains the colloid osmotic pressure in plasma. Blood भी बोल सकते हैं. Number 2, acts as a binding protein. The lesser important function. Acts as a binding protein in plasma. So what will happen? What will happen if there is a deficiency of albumin? आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं, ह्यूमन बॉडी के जितने फंक्शंस के बारे में अब तक जाना गया है उसका तरीकाकार क्या इख्तियार किया गया कि फंक्शन कैसे कर रहे होंगे उनको निकाल के, कि अगर ये नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा। तो वो जो प्रॉब्लम हो रहा है इसका मतलब है इसके होने से वो नहीं था। So the deficiency of that particular substance actually tells you that what is the function of that substance. In human brain, there are 4 lobes on the right hemisphere and 4 on the left. And how does the scientist come to know the function of the different human parts of the human brain? They actually removed each of them in monkeys and in rats. And then they see the what is the behavioral change or what is the change in the functions of that particular animal. And then they come to know, okay, now he is not doing this. Now he is unable to walk properly. Now he is unable to whatever, जो भी काम है उसका नहीं हो पा रहा. तो ये जनरली ऐसे चलता है. What will happen if there is no albumin in human blood? It will be अब तो सिंपल इंग्लिश बोल लेते हैं ना. It will be unable to maintain colloid osmotic pressure. It will be unable to bind. It is a protein. It will be unable to bind anything with it. जो कि पहले ये कर रहा था. अब इसको जरा एक स्टेप में आगे लेके जाने लगा. गौर से सुनना. What is the importance of colloid osmotic pressure, which in absence of albumin may hurt the human body? Remember this thing. Colloid osmotic pressure. Whenever there is term of colloid, it means proteins. What does the term colloid means? Proteins. पहले तो ये clear कर लो. तो अब क्या word बन गया? Plasma colloid osmotic pressure. मतलब कि प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर तो आपको पता ही, वाटर का प्रेशर. इसका मतलब है प्लाज्मा में वाटर का प्रेशर ड्यू टू प्रोटीन्स. लेट्स सिंप्लीफाई द थिंग्स फर्स्ट, देन वी विल गो अहेड विद द कॉन्सेप्ट. द प्रेशर ऑफ वाटर इन द प्लाज्मा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन इज कॉल्ड प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर. वन थिंग इज दिस. अब अगली बात गौर से सुनो. अब मैं इसको क्लियर कर दूं कॉन्सेप्ट को, बहुत जगह पे आने वाला है. प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर आपके फिजियोलॉजी के ऑलमोस्ट एवरी सेकंड चैप्टर में आएगा. पैथोलॉजी इससे भरी हुई है, तो इसका एक कॉन्सेप्ट अभी बना लो ताकि हमारे अगले पूरी की पूरी बिल्डिंग जो भी हमने खड़ी करनी हो इजी हो जाए. इधर देखो मेरी तरफ. 99.9% of the human proteins are negatively charged. So the negative charge always attracts a positive charge. It's a very basic rule. Now albumin is in very good amount in plasma. It is negatively charged. सबसे ज्यादा है ये प्लाज्मा में. तो क्या करेगी? पॉजिटिव अपनी तरफ खींचेगी. तो प्लाज्मा में पॉजिटिव क्या है? आयंस. ये जो मैंने अभी लिखा है ना 7 to 9%, वो जो बाकी है ना मोस्टली वो आयंस ही हैं. और भी चीजें हैं, मोस्टली आयंस ही. तो आयंस में आपको पता है कैटाइंस, एनाइंस. कैटाइंस पॉजिटिव, तो वो जो पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं वो इस प्रोटीन की तरफ आते हैं. गौर से सुनो, मेरी तरफ देखते रहो, बस इसको समझ लो, आप लिख लोगे इसको, मुझे पता है. You people are good in English. Just listen to me. The proteins are attracting the positively charged. And which positively charged is highest in plasma? Sodium ion. Now the next step. Albumin in plasma. Sodium is coming towards albumin. And always remember one rule in human plasma.
whenever there is sodium, it will always be in hydrated form. Hydrated, what do you mean by hydrated form? It will be covered by a circle of water molecules always. उसको वाटर मॉलिक्यूल ने ऐसे पकड़ा होता, सोडियम उसके अंदर ऐसे छोड़, वन मॉलिक्यूल सोडियम ऐसे पकड़ा, ऐसे जा रहा है. So if sodium is coming towards albumin in buy one get one free offer, what is coming with sodium? Water. So whenever there is a good albumin in the human plasma, it is always attracting water towards plasma. It is trying to prevent the loss of water from the plasma. Because there will be many things which will be taking out water from the plasma. There are holes in the capillaries. There are pores in the capillaries. When the plasma will be passing through those capillaries, there are very good chances that water may escape out into the interstitial spaces. Out of the capillary के बाहर क्या है? Interstitial space. Very good chance it may escape out. So what is albumin doing? Try to bring it back. Trying to bring it back. हाँ जाता भी है, ये नहीं कि बिल्कुल ही जीरो है, जाता है जरूरत के हिसाब से, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि देखो वाटर ना, वाटर वो उसको नहीं पता कि मैंने मुझे कोई रोक रहा है नहीं रोक रहा है. आप अगर आप शॉपर के अंदर पानी डालेंगे और उसके अंदर आप होल बना देंगे, आप वाटर से जितनी मर्जी अच्छी बात कर लें वो रुकेगा नहीं. आप उसको जितना मर्जी समझाएं प्लीज रुक जाओ, आज के लिए रुक जाओ, यहां से मत जाओ, ये जगह नहीं है जाने वाली, उसको नहीं पता भी उसकी नेचर है. Whenever there will be a place, water will try to go, try to flow. Similar thing happen in the blood, human blood as well. There are capillaries with pores. So, but Allah Jalla Shanu has given a protective mechanism to the water as well in the form of albumin. And there is a science behind it. It is trying to protect the water. So just imagine, what will happen if there is low albumin in the human plasma? Loss of water in the interstitial space. इसको मैं एक और तरीके से बोलता हूं. Increase in unwanted water in interstitial space. Unwanted का word use कर रहा हूं. Wanted होता है वहां पे पहले से. Interstitial space is not dried. It's always have some water. But if there is unwanted accumulation of water in the interstitial space, that problem is called edema. समझ लो, कॉन्सेप्ट बना लो, रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा इसको. So, can you name a disease which may happen in the deficiency of albumin? Now you know the reason as well. Now, if Viva in Viva, an examiner asks that why edema occurs in the deficiency of albumin, you have to tell him the whole concept of colloidosmotic pressure, the negative charge on protein, the attraction of that sodium by the proteins, the hydrated sodiums come and the water also accompany it. And when there are low albumin, everything is reversed. Sodium is not now coming towards the protein, water is not coming to kahan jayega? In the interstitial space. Interstitial edema. Got the concept of the function of albumin and it acts as a binding protein. तो मैं आपको वो एग्जांपल भी दे देता हूं कि वो बाइंडिंग प्रोटीन नहीं, ऐसे नहीं. मैं पहले आपको ग्लोबिन के फंक्शन बता दूं, फिर इसकी एग्जांपल सुनने का मजा आएगा. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. ग्लोबुलिन्स. ग्लोबिन्स मैं इसको अलग से लिखूंगा इसके फंक्शन समझाने के लिए, यहां लिखता हूं इसको. ग्लोबुलिन्स. There are basic 3 types of globulins: the alpha globulins, the beta globulins and the gamma globulins. कौन कौन से? ये वैसे दोनों तीनों इकट्ठे ही होते हैं भाई, है ना. जहां भी होते हैं अल्फा बीटा गैमा, ये इकट्ठे ही होते हैं. फिजिक्स में भी इकट्ठे थे, यहां भी इकट्ठे. ओके. The alpha globulin is further divided into two, the alpha 1 and alpha 2. Don't worry, beta and gamma have no further divisions. It's only alpha. So generally speaking, if I ask a question, can you tell me some types of globulins? You will tell me 4. Alpha 1, alpha 2, beta and gamma. By the way, these 4 plasma proteins are formed where? Are they formed in plasma? No.
they are formed by the liver and then released into the plasma. Remember this thing, all major four plasma proteins, albumin, globulin, fibrinogen, prothrombin are formed by the liver. क्योंकि कुछ बात आने लगी आगे इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड, ये बात बताना इसलिए जरूरी है. तो ग्लोबुलिन्स भी कहां बन रहे हैं सारे, एक्सेप्ट वन. The gamma globulins are not formed by liver. Gamma globulins are not formed by the liver. और ये आपको पता है गैमा ग्लोबुलिन्स आपको ऑलरेडी पता है, अभी मैं आपको बताऊंगा, आपको याद आ जाएंगे. Gamma globulins are also called as immunoglobulins. Oh, सर याद वैसे अभी भी नहीं आया. एंटीबॉडीज. मैं एक चीज क्लियर कर दूं यहां पे क्योंकि गाड़ी कोई और सवारियां ना बिठा ले, तो मैं चीज क्लियर कर दूं. These gamma globulins antibodies are not generalized antibody which you have read in immune system. How do you define an antibody? It is formed by the antigen, as a reaction to the antigen, formed by the B lymphocytes as a reaction to antigen. Clear? These antibodies are not formed as a reaction to the antigen. These are naturally present in human blood, and these are always present in human blood even at the time of birth. These are there and they remain there till death. Remember this. These are not antibodies, फिर बार बार बता रहा हूं, these are not antibodies like the usual human antibodies. अगर एक एंटीजन आपकी बॉडी में कभी एंटर ही नहीं हुआ, its respective antibody will never be there in your blood. It's as simple as that. But for these gamma globulins, immunoglobulins antibodies, these are naturally present. These are 5 types of it, and the formula is GAMED. Easy to memorize, no? Achha, despite having a very good concept of everything in human physiology and medical sciences, still there will be something you have to go for some mnemonics. You have to make something out of it, make a formula out of it, whatever. याद रखने के लिए कहीं ना कहीं ऐसा करना पड़ता है. तो गेम्ड, हम इसको मतलब लिखते कैसे, लिखने का तरीका देखो. इम्यूनोग्लोबुलिन कैपिटल I स्मॉल g, इम्यूनोग्लोबुलिन कैपिटल I स्मॉल g, कैपिटल I स्मॉल g, कैपिटल I स्मॉल g, कैपिटल I स्मॉल g, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD. This is how you will write it. This is how you will tell it in the Viva. If someone asks you there are how many types of immunoglobulins, you will tell, say there are 5 types of immunoglobulins: IgG, IgA, IgM, IgE, IgD. इनके भी कुछ MCQs हैं, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं. मैं कुछ बात इनकी हल्की सी यहाँ पे करूंगा, ज़्यादा डिटेल हम इसके WBCs के साथ वहां पे ज्यादा अच्छे से करेंगे. 75% in human blood out of 100% of immunoglobulin is IgG. 3/4 of all the immunoglobulins is IgG. 75% is 3/4 ना? Yes. I'm not good in maths, that's why I have to. और पूछ भी किससे रहा हूं. अच्छा, next. IgG is the only immunoglobulin which can cross placenta. The only immunoglobulin of all 5 which can cross the placenta. What does it mean? Yes, the fetal IgG can go to mother. The mother IgG can go to rest, cannot cross placenta. So it means, let's go one step ahead. It means if there is any disease related to IgG, that is not a good news for a mother in pregnancy. It will impact the fetus. Any disease related, बस यहीं पे रोक देता हूं, इससे आगे नहीं जाता, क्योंकि डिजीज जब करोगे तो ये बात वहां पे क्लिक हो जाएगी. ओके. IgM, the largest in structure. It's a pentamer, 5 सब यूनिट से मिलकर बना.
स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा है आईजीएम। आईजीजी अमाउंट में ज्यादा है, आईजीएम स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा है। आईजीए प्रेजेंट इन सिक्रीशंस, in human secretions, saliva, seminal fluids, synovial fluids. It is present in secretions, IgA. IgE linked to allergies. बस इतना लाइन लिख लो, WBCs में करेंगे इसको. IgE is linked with human allergies. We are talking about the blood allergies. We are not talking about the brain allergies here. यार मुझे उस बंदे से बड़ी एलर्जी है, वो वाली एलर्जी नहीं है, ये कुछ और एलर्जीज हैं जो बाय बर्थ हमें मिलती हैं, तो उसकी बात हो रही। ओके, सो कमिंग बैक टू द ग्लोबुल, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ग्लोबुलिन्स? टू फंक्शंस, अगेन लाइक एल्ब्यूमिन, मैं आसान कर देता हूं, इनवर्स द ऑर्डर ऑफ फंक्शन ऑफ एल्ब्यूमिन, इट इज ग्लोबुलिन। नंबर वन फंक्शन ऑफ ग्लोबुलिन, एक्ट एज अ बाइंडिंग प्रोटीन। Number two function of globulin, maintains the colloid osmotic pressure. Getting it or not? The functions of albumin and globulin are same. What's the difference? Order is the difference. अब आपको MCQ आ रहा है कि MCQ, the main functions of globulins is act as a binding protein. अब अगली बात देखो गौर से, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा, मैं इसकी एग्जांपल लिख रहा हूं, फिर मेरे फंक्शन करवाने बहुत आसान हो जाए। एक एक एग्जांपल याद रख लो इनकी। अल्फा 1 में है अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, अल्फा 2 की एग्जांपल है हेप्टोग्लोबिन, हेप्टोग्लोबिन लिवर से मिलता जुलता वर्ड है। ओके, बताता हूं, अभी इनके फंक्शन भी बात करते हैं। बीटा ग्लोबिन की एग्जांपल ट्रांसफेरिन, 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 फेरिन इज फॉर आयरन, बाइंड्स द आयरन इन ह्यूमन ब्लड, बीटा ट्रांसफेरिन। अल्फा 1 की एग्जांपल क्या लिखी है? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा 2 की एग्जांपल हेप्टोग्लोबिन, और बीटा की एग्जांपल ट्रांसफेरिन, और गैमा की तो 5 लिखवा दी मैंने आपको। हम ह्यूमन ब्लड का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, हम कहीं हट ना जाए, जस्ट 1 मिनट, हम ह्यूमन ब्लड का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, और ह्यूमन ब्लड के टॉपिक में ह्यूमन ब्लड के फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं, और फंक्शंस में हम इस वक्त उसके प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा प्रोटीन्स में द सेकंड मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन विच इज ग्लोबुलिन, उनकी बात कर रहे हैं, और ग्लोबुलिन्स की टाइप्स के अंदर है। मैं ये चाह रहा हूं कि ये ना हो कि हम किसी इतने पर्टिकुलर हो जाएं किसी चीज में कि हम जनरल बात ही भूल जाएं, बात क्या कर रहे हैं, इसलिए आपको मैं पीछे अटैच करूं। आपका क्वेश्चन था बेटे कोई? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, इसका नाम ही अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है, तो वैसे ही याद रह जाएगा, ये सिर्फ एंटीट्रिप्सिन नहीं है। यस, मैं अभी तो मैंने कुछ भी नहीं बताया, ये तो मैंने अभी इनकी सिर्फ 1-2 बातें बताई, इसकी डिटेल डिस्कशन करेंगे हम, एंटीबॉडीज आएंगी ना जब WBCs के अंदर, वहां पे इसकी डिस्कशन डिटेल से बताऊंगा आपको, इसकी डायग्राम भी है, इसकी स्लाइड भी दिखाऊंगा आपको। मैंने इसलिए कही, मैंने बहुत ब्रीफ बताया अभी इसका, आई नीड अ सेपरेट लेक्चर फॉर दीज 5, जो मैं इसके फंक्शंस और इसकी डिटेल्स में आपको करवाऊं। ओके, अब इधर गौर से देखो, ट्रांसफेरिन बीटा ग्लोबुलिन बाइंड्स द आयरन इन ह्यूमन ब्लड, द आयरन यू ईट when it enters the human blood, it binds to this transferrin protein. By the way, transferrin protein की ultimate destination कौन होगी? आयरन यूज कहां होना है? कहां यूज होना है? हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। हीमोग्लोबिन कहां पे? बोन मैरो, आरबीसी। तो इसका मतलब है ट्रांसफेरिन ने आयरन को लेके शायद वहां पहुंचना, लिवर में भी जाता है स्टोरेज के लिए, goes to the liver as well, but the main destination is bone marrow, so that hemoglobin can be formed there. Heptoglobin, heptoglobin is a protein which binds the hemoglobin with it in the liver. It does not allow heme to escape from the liver. मैं समझाता हूं, इसको लिख लो,
आपको मैं कॉन्सेप्ट देता हूं पूरा। ये मेरी आदत ही नहीं है कि मैं बगैर कॉन्सेप्ट के बात करूं, तो इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। हेप्टोग्लोबिन का फंक्शन क्या है? इट बाइंड्स हीमोग्लोबिन विद इट, हीम स्पेशली बाइंड्स द हीम पोर्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन विद इट एंड कीप्स इट इन द लिवर। हीम को कहां रखता है? लिवर में। अब जरा गड़बड़ होगी थोड़ी सी कॉन्सेप्ट में, सर अभी तो बात हुई हीमोग्लोबिन तो बोन मैरो, तो ये लिवर, एक्चुअली इट इज द एंड पॉइंट ऑफ द हीमोग्लोबिन। आरबीसीज आर ब्रोकन डाउन बाय द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, स्प्लीन। तो क्या निकलेगा आरबीसी को टूट के? है क्या उसके अंदर? हीमोग्लोबिन। So out of that hemoglobin, globin is detached and heme is taken to the liver. And in liver, the heme attaches to the heptoglobin. Once enters in the liver, does not come out. This heptoglobin prevents the turning back of hemoglobin back to blood. And what does liver do with the heme? Break it down. Converts it into bilirubin. वहां पे जा रहा है ये बाइल, उस तरह बात निकल गई। ओके, हेप्टोग्लोबिन का फंक्शन समझ आ गया? तो एक्चुअली ट्रांसफेरिन और हेप्टोग्लोबिन दोनों ही हीम और आयरन रिलेटेड है, लेकिन देखो फर्क है। हेप्टोग्लोबिन लिवर के अंदर है, वहां पे प्लाज्मा में आ जाता है, फिर लिवर में भी काम करता है। और फिर अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, इट इज रिलेटेड टू लंग्स। ये एक प्लाज्मा ग्लोबुलिन है जो बेसिकली जिसका लंग्स से ताल्लुक है। ये लंग्स में डिफरेंट एलर्जीज और डिफरेंट इन्फ्लेमेशन को काउंटर करने का काम करता है। ये वहां पे ये काम कर रहा है, लंग टिश्यू से ताल्लुक है इसका। सो जनरली स्पीकिंग, लेट मी ब्रिंग इट बैक टू यू। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लोबुलिन? बाइंडिंग प्रोटीन। अब याद, एक और बात याद रखो, ये तो थे इंडिविजुअल ग्लोबुलिन्स। अगर सब ग्लोबुलिन का बाइंडिंग प्रोटीन के किसके लिए, कौन है एक ऐसी चीज जिसके लिए करते हैं, तो आसान बात याद रख लो, globulins act as a binding protein for lipid soluble substances in the plasma। सब ग्लोबुलिन्स को अगर एक ही देना हो ना कि वो कौन सा सब्सटेंस है जो सारे ग्लोबुलिन प्रेफर करते हैं कि अपने साथ बाइंड करें, वो कौन है? लिपिड soluble। एंड द नंबर 1 इन द लिस्ट ऑफ लिपिड soluble इज लिपिड्स। योर प्लाज्मा फैट्स, whenever they are running in the blood, they are always bound to the globulins। जितना फैट आपके प्लाज्मा के अंदर है ना बेटे, प्लाज्मा में फैट है, मैं अभी बताया नहीं आपको, मैंने अभी आपको ये सब्सटेंसेस में 7 to 9 प्लाज्मा प्रोटीन्स पे ही हूं, मैं अभी बाकी पे शिफ्ट नहीं हुआ, मैं आता हूं उस तरह, बस लास्ट 5 मिनट्स में वो करवाऊंगा। लेकिन याद रख लो कि वो जो फैट ट्रेवल कर रहा है वो किसके साथ बाइंड करके कर रहा है? अच्छा, उसमें सारे शामिल हैं, ये भी क्लियर कर दूं। अल्फा ग्लोबुलिन अल्फा-1 का फंक्शन ये है, ये भी फैट को बाइंड करता है, अल्फा-2 भी बाइंड करता है, बीटा भी बाइंड करता है। ये इनके इंडिविजुअल अलग-अलग प्रोटीन्स की मैंने एग्जांपल करवाई है, लेकिन इन तीनों का एक कॉमन बताना हो, दे बाउंड व्हाट? लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस, एंड ऑफ कोर्स दीज आर लिपिड्स। आता हूं, अब आने लगूं वापस एल्ब्यूमिन की तरफ। तो एल्ब्यूमिन किसको बाइंड करता है? एल्ब्यूमिन की एक एग्जांपल याद रख लो। एल्ब्यूमिन लिपिड्स को जनरली बाइंड नहीं करता। एल्ब्यूमिन एक्ट्स एज अ बाइंडिंग प्रोटीन फॉर कैल्शियम आयंस। जनरली अब समझ आएगा, अब एल्ब्यूमिन का बाइंडिंग फंक्शन याद रहेगा। एक तो इतना मेजर है नहीं, एल्ब्यूमिन का ये कोई इतना मेजर काम नहीं है बाइंडिंग करना, लेकिन किसके लिए करता है? कैल्शियम। एक एमसीक्यू बता रहा हूं यहां पे, 50 out of 100% of plasma calcium, listen to me first, then you may write it. Out of 100% of plasma calcium, 50% is bound to albumin, 50% is free in plasma. Now write it down. Out of 100% plasma calcium बोल रहा हूं, कैल्शियम सेल के अंदर भी होती है, उसकी बात नहीं हो रही। Out of 100% plasma calcium, 50% is bound to albumin, 50% is in free form in plasma. ये लिख लिया? इन्होंने क्वेश्चन किया है कि सर बाउंड करने की जरूरत क्या है। अब आपको मैं रूल बताऊं मजे का, प्लाज्मा में किसी भी चीज को बाउंड करने की जरूरत क्या है, उसकी लॉजिक दूं मैं आपको, गौर से सुनो। एनीथिंग which is bound to the plasma with anything, प्लाज्मा के किसी भी सब्सटेंस से बाउंड हुई है, it will not filter out from the glomerulus। ग्लोमेरुलस कहां से आ गया? नेफ्रॉन। तो क्या मतलब हुआ बेटे, प्लाज्मा में अगर कोई चीज आई है उसको प्लाज्मा में बचाना भी तो है ना।
ये तो नहीं है प्लाज्मा तो गुजर रहा है फिर नेफ्रॉन से होके, तो ग्लोमेरुलर से फिल्टर हो जाएगी, प्लाज्मा तो फिर बेचारा खाली हो गया। तो प्लाज्मा की जो चीजें हैं अल्लाह जल्ला शानू ने उनको प्रोटेक्शन भी दी हुई है कि ऐसे ही फिल्टर ना हो जाए वो। अब गौर से रूल क्या है, नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस के लेवल पे जो फिल्ट्रेशन होती है उसका रूल क्या है, एक तो जो साइज में छोटी हो और वो प्लाज्मा में किसी चीज से अटैच ना हो, तो फिल्टर हो जाएगी, तो निकल जाएगी। इवन साइज में छोटी है, कैल्शियम आयंस माइक्रोस्कोपिक। तो इसका मतलब है प्लाज्मा कैल्शियम का कितने परसेंट फिल्टर होगा, 50% जो फ्री है, जो एल्ब्यूमिन से, और एल्ब्यूमिन से अटैच करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि कैल्शियम का बॉडी में यूज ही बहुत है। अगर सारी प्लाज्मा कैल्शियम फिल्टर होनी शुरू हो गई तो वी आर डेफिशिएंट विद कैल्शियम ऑलवेज, and calcium is calcium is one of the clotting factor as well, the only ion which act as a clotting factor out of 13. Yes, it is calcium ion, and you already know a function of calcium in the muscles, stored in sarcoplasmic reticulum, released to be bound with troponin and all that stuff. Your contraction mechanism, I cannot speak if my calcium is not working properly. So calcium is that much of important. अब बात समझ आई आपको कि किसी भी चीज का फैट, मैं आपसे भी सवाल कर लेता हूं, हालांकि सेकेंड ईयर एमबीबीएस में हमने एक क्वेश्चन करना है, व्हाई फैट नेवर अपीयर इन यूरिन? यू नो द रूल, दे आर बाउंड टू, हाँ, इफ द ग्लोबुलिन्स आर डेफिशिएंट एनीथिंग कैन हैपन, यस, एनीथिंग कैन हैपन। दिस इज द इंटीग्रल इंपॉर्टेंस ऑफ बाइंडिंग एनीथिंग इन द प्लाज्मा। Can you tell me the time, please? 49. So we have 7-8 minutes. Okay. Just one. पूछो सवाल है, पूछो। नहीं, सब आइंस के नहीं होते। सोडियम का बाइंडिंग प्रोटीन नहीं है सोडियम, लेकिन सोडियम अट्रैक्टेड हो रहा है टुवर्ड्स एल्ब्यूमिन, तो वो उस तरीके से बच रहा है, लेकिन स्टिल सोडियम इज फिल्टर्ड आउट, कैल्शियम इज ऑल्सो फिल्टर्ड आउट, मेनी आइंस आर फिल्टर्ड आउट इन यूरिन एज वेल, बट इट इज नॉट 100% ऑफ एवरीथिंग इज फिल्टर्ड। ये इंपॉर्टेंट, आएंगे वो उस रूल्स में करेंगे, उसमें कुछ और रूल्स भी है। यस, मैं बताता हूं। हाँ, ऑल द ग्लोबुलिन्स, ऑल द एल्ब्यूमिन्स आर फॉर्म्ड बाय लिवर, द गैमा ग्लोबुलिन्स आर फॉर्म्ड बाय द बोन मैरो। वो WBCs तो कहां पहुंच गए पीछे, बोन मैरो। हाँ, दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीबॉडीज, बट स्टिल दे आर फॉर्म्ड बाय द बोन मैरो। आपको प्लाज्मा में मिलेंगे, लेकिन उनका सोर्स कहां से आ रहा होगा, बोन मैरो से। बाकी जितने ग्लोबुलिन्स हैं, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ट्रांसफेरिन, हेप्टोग्लोबिन, और भी लंबी लिस्ट है, जितने भी हैं वो सारे के सारे कौन बना रहा है, लिवर बना रहा है। सो कैन यू इवन इमेजिन व्हाट कैन हैपन व्हेन देयर इज हेपेटाइटिस? It is not only the pain in right hypochondrium, there is malaise and tidiness and there is jaundice. It is just the features. There is a whole destructive stories going on in his blood. He is becoming deficient of albumin, he is becoming deficient of globulins, and all these are not reaching there where they should reach. आयरन कैसे पहुंचेगा बोन मैरो तक? हीम को कौन रोक के रखेगा लिवर के अंदर? So this is how liver is of so much importance. और एडीमा भी होता जा रहा है साथ साथ एल्ब्यूमिन। अक्सर जिनका लिवर फेलियर होता है, असाइटीज, पेट फूल जाता है, अगर किसी ने अपने फैमिली में गॉड फॉरबिड कोई पेशेंट देखा हुआ है तो शी नोज इट वेरी परफेक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। गेटिंग द पॉइंट? ओके, सो ये तो हो गई हमारी इसकी डिटेल, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है वाइवा में। रिटर्न में अलहदा से 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट डाउन द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। आई नो यू कैन राइट इट, द 5 मार्क्स आंसर ऑफ दिस फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। आई होप यू विल राइट इट। ओके, रिमेनिंग अदर 7 to 9, 10 में से 7 to 9 तो यही हो गया। तो 1% आर आयंस, 1% आयंस, कैटाइंस, एनाइंस, उसको डिवाइड कर लो। कैटाइन में सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम, एनाइंस के अंदर क्लोराइड, बाइकार्बोनेट आयन, फॉस्फेट, लिस्ट अप कर सकते हो। यू पीपल आई थिंक नो बेटर देन मी अबाउट ऑल दैट डिवीजन ऑफ द ह्यूमन प्लाज्मा आयंस। ये भी प्लाज्मा के अंदर है। और क्या क्या है इसके अंदर? और इसके अलावा अब मैं अमाउंट में कम होता जा रहा हूं, अमाउंट में कम। वेस्ट प्रोडक्ट्स, वेस्ट प्रोडक्ट
अब जरा 1 से थोड़ा सा और कम हो गया। प्लाज्मा की परसेंटेज चल रही है, ये प्लाज्मा की ये 10% की बात कर रहा हूं, ये 10 की डिवीजन है ये। इसको 100% में से ना समझ लेना कि 100%, 10 की डिवीजन हो रही है। इस 10 में से 7 to 9 प्लाज्मा है, और इसी 10 का बाकी कितना बचा, 1 to 2। उसमें 1% तो आइंस ले गए, तो इट इज लेस देन 1% विच इज रिमेनिंग बिहाइंड। तो उसमें नंबर 1 में क्या लिखा है, वेस्ट प्रोडक्ट। द वेस्ट प्रोडक्ट इन ह्यूमन प्लाज्मा, यूरिया एंड यूरिक एसिड, two important waste products. There are also others, but the most important to remember for you people are urea and uric acid. Do not forget about these two waste. अच्छा, और भी कुछ waste होता है. Whatever drug you are taking, what happens to a drug after it has done its function? It becomes a waste. What if you have taken a drug which was not needed? It is a waste. Getting it? So do not take drug if it is not needed. Very important. And for being a doctor, do not prescribe a drug if it is not needed. Very important. So that's how your core knowledge of medicine is so much importance. अपने घर वालों को दवाइयां दोगे सबसे ज्यादा अपनी लाइफ में, तो अगर दवाई देने का तरीका सही नहीं आता है तो खिलाते जाओ जितनी मर्जी पे, लेकिन किसको खिला रहे हो ये देखो। और जब एक दिन किसी पेशेंट को दोगे तो वो भी किसी का घर वाला, किसी का रिलेटिव इंपॉर्टेंट है उसकी फैमिली के लिए। वी कैन नॉट एक्सपेरिमेंट ऑन अ ह्यूमन बॉडी। तो दैट्स वाई दिस होल क्यों बैठना पड़ रहा है यहाँ पे आके। ऑनलाइन भी तो है, इतना कुछ यूट्यूब पे जाके देख लेते हैं, वहां पे कर लेते हैं, लर्न कर लो कहीं से, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन एक्चुअली जो कानून है ना नेचर का, लॉ ऑफ नेचर यही है, यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन टू लर्न समथिंग। हदीस है ना, इल्म हासिल करो खा तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। व्हाई इट इज बीइंग टोल्ड इन दैट वे। चाइना वॉज far away from the Medina and Makkah at that time, जब हमारे नबी ने ये फरमाया था। Why it was said to Sahaba Karam at that time? Because China was thought to be impossible place to go. ना कोई जहाज, ना गाड़ी, ना कुछ। तो क्यों ये बताया गया चाइना भी जाओगे इल्म हासिल। द कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट कि कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, अपने कंबल से, अपनी रजाई से, अपने बिस्तर से उठ के आना पड़ेगा, यहाँ पे बैठ के सुनना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से निकलेंगे तो लर्निंग आगे स्टेप पे जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जस्ट 1 मिनट, मुझे कंप्लीट करने तो मैं क्वेश्चन दूंगा क्योंकि फिर आपका टाइम खत्म हो जाएगा। यूरिया, यूरिक एसिड, इंपॉर्टेंट वेस्ट एंड एनी ड्रग यू आर टेकिंग, एंड व्हाट हैपेंस टू अ हार्मोन आफ्टर इट हैज डन इट्स फंक्शन, डज इट गो बैक टू इट्स रिस्पेक्टिव रिलीज टिश्यू? इट इज अ वेस्ट। पिट्यूटरी हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी के 6 हैं, वो 6 जब ब्लड में आते हैं और अपना काम करते हैं, कभी सुने वापस एंटीरियर पिट्यूटरी में चले जाते हैं, दे आर वेस्टेड। अगेन वेस्ट प्रोडक्ट में आ जाए। मैंने बताया लिस्ट बहुत लंबी है, वो सिर्फ अभी जा नहीं रहा, बस ये 2 याद रख लो, ये बहुत होगा। इसके अलावा और इसमें क्या है, ग्लूकोज खाते हो ना डेली बेसिस पे, वेरी इंपॉर्टेंट। यस, ये इतनी कम क्यों है प्लाज्मा में? प्रोटीन इतने ज्यादा, ग्लूकोज इतनी कम, ये क्या बात है? एग्जैक्टली, ग्लूकोज नेवर रिमेन्स इन प्लाज्मा। प्लाज्मा प्रोटीन आर ऑलवेज देयर, दे आर नॉट बीइंग यूज्ड बाय द सेल्स। ग्लूकोज आई सेल में चलेगी, आई सेल में चलेगी तो प्लाज्मा में इसका लेवल कभी अप होना भी नहीं चाहिए। If there is too much glucose in plasma, that is diabetes, not good. उससे भी कम, बेटे वो जा रहा है ना सेल्स में। Yes, 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 absolutely. And then fats also when enter in the blood goes to their target. 2 target tissue है फैट के, one is liver and second is adipose tissue. Fats, they circulate in plasma, they bound to globulins, and where they reach ultimately, liver and adipose tissue. Again, they do not remain in plasma. ये इंपॉर्टेंट है, वो प्लाज्मा में रहते ही नहीं, तो इसीलिए अमाउंट कम है, लेकिन है तो सही, इसको निगलेक्ट भी नहीं कर सकते। सो प्लाज्मा के कंटेंट वाटर, अब मैं जरा हाई टू लो, वाटर, प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन भी कर लेते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम। उसके बाद आ जाओ आइंस, आइंस में कैटाइंस, एनाइंस, और उनके भी फंक्शन आगे आप बता सकते हो, यू पीपल ऑलरेडी नो, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा अभी। उसके बाद आगे आ जाओ वेस्ट प्रोडक्ट्स, ग्लूकोज, फैट्स। दिस इज हाउ दिस होल ब्लड इज कंपोज्ड। एंड क्लियर हो गई ये बात? नाउ यू विल बी एबल टू राइट द फंक्शंस ऑफ ब्लड।